Well, viewers, in the wee hours today, convicted Don and former Bihar MP Anand Mohan was released from the Sarsa jail. This Bahubali was convicted, remember, by the courts for the murder of an IAS officer and the Gopalganj district magistrate G. Krishnaiah by ordering a mob to lynch him. Today, early morning, away from the media glare and merely hours after he surrendered, the gangster was freed. Remember, he is one of the 27 beneficiaries of the Nitish Sarkar tweaking the jail manual rules on the 10th of April, thereby allowing remission even of those convicted of killing public servants. First up, we take you through reactions coming in. We also have a breaking news development in the meanwhile. The Bihar Chief Minister, we have reactions coming in from the political circles in Bihar. Several are speaking of how there is nothing wrong in it. It is the right and the duty of the government to make amendments with time. So people really batting for the kind of decision, the tweaking of the prison rules that have been done by the Nitish Sarkar. This is the Bihar Chief Secretary, says if there have been some changes, there's nothing wrong with it. It's done within the amendments with time. Listen in. चीज अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज नहीं है। चीजों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। चीज अगर बदली गई तो वो कोई आश्चर्य नहीं है और कोई गलत चीज नहीं है। चीजों को समय समय पर देख करके बदलना ये सरकार का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। But while as the news of his release spread, his supporters lined up to valorize him. They chanted Anand Mohan Zindabad, called him a lion who's now free from jail. However, for the family of the murdered IAS officer, today is a day they feel betrayed by the state and by the system. The anguished wife and daughter plead to the Chief Minister Nitish Kumar to send Anand Mohan back to jail. They've sent out that personal appeal. They've requested the Nitish Sarkar to take back the changes that have been brought in that essentially have paved the way for the release of Anand Mohan. Listen in. बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि उनकी रिहाई हुई आज सुबह में 4:30 को। हम तो चाहते थे कि वो जेल में ही हो, मगर ऐसा नहीं हुआ। आखिर बाहर आ ही गए हैं वो। तो इसमें नीतीश कुमार जी का बहुत बड़ा हाथ है। पता नहीं वो इतने बड़े क्रिमिनल को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी से तो हम बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि शायद हम बात भी करें तो उनको हमारा जो पेन है और हमारा जो सफरिंग है शायद उनको समझ में नहीं आएगा। पीएम मोदी जी से है, क्योंकि जो भी है वो ही कर सकते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी है हमारी ये मिन्नती कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट को हम अपील करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। अगर हम आनंद मोहन जी रिलीज हो बोले तो देख के ना पब्लिक तो प्रोटेस्ट करेगा उसको फिर जेल में भेजने के लिए। ये तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और उसको चीफ मिनिस्टर जी को प्रेशराइज कर दिया होगा, ऐसा इसलिए ऐसा डिसीजन ले लिया। इतना पब्लिक प्रोटेस्ट करने के बाद भी वो रिलीज कर रहा है बोले तो ये गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। A reaction coming in from AIMIM Chief Asaduddin Owaisi as well speaks of how this entire change in the prison policy that's been brought in by the Nitish Sarkar is very, very disheartening. Also says he stands with the slain IAS officer's family. Listen in. अफसोस की बात यह है कि बिहार के IAS ऑफिसर्स हैं, उनका एसोसिएशन है, वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं। आप जेल मैनुअल के को अमेंड करते हैं, प्रिजनर मैनुअल को, तो अब ये बताइए कि कौन सा IAS ऑफिसर अब बिहार में अपनी जान को खतरे में डालकर गरीब जनता के लिए काम करेगा? आखिर क्या वजह है कि एक आदमी को छोड़ने के लिए उनको आप छोड़ने के लिए प्रिजनर मैनुअल के क्लॉज को हटा रहे हैं? तो मैं कृष्णैया साहब की फैमिली के साथ हूं।
साकेत joining us live with more details. साकेत, आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात सुनी और वो यही सवाल उठा रहे हैं जो काफी विपक्ष दल के नेता उठा रहे हैं कि ऐसा क्या प्रेशर था, ऐसी क्या मजबूरी थी कि नीतीश गवर्नमेंट को ऐसा बदलाव लाना पड़ा प्रिजन रूल्स में कि आनंद मोहन जैसे क्रिमिनल्स को रिलीज करना पड़ा। और हमने फैमिली मेंबर्स से भी बात की, जो स्लेन आईएएस ऑफिसर है कृष्णैया, काफी गुस्सा है, काफी अफसोस मनाया जा रहा है जो हुआ, पर चौंकाने वाली बात है कि उनका रिलीज अर्ली मॉर्निंग हुआ, 3 से 4:30 के बीच में हुआ और उसके बाद हमने देखा उनके सपोर्टर्स कैसे मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे। देखिए बिल्कुल, चूंकि जो रिहाई हुई है वो आप देखिए किस तरह से सुबह सुबह 3 बजे के आसपास उनको रिलीज किया गया जेल से। ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर चुपचाप क्यों ये कार्रवाई की गई। और दूसरी तरफ जिस तरह से कानून में बदलाव हुए उसके बाद विपक्षी पार्टियों की तरफ से तो निशाना साधा ही जा रहा है, लेकिन सवाल नीतीश कुमार से है, सरकार से है कि आखिर कानून में बदलाव करके क्यों इन लोगों को फायदा दिया गया। बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ आनंद मोहन नहीं बल्कि ऐसे 27 अपराधी हैं जो दुर्दांत अपराधी है, जिन पर कई तरह के मामले हैं, हत्या और इस तरह के मामले, उन लोगों को रिलीज किया गया है और इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों को रिहा किया गया है वो उनके समीकरण को करता है। और खास करके आनंद मोहन को लेकर बातें चल रही है कि आनंद मोहन जिस इलाके से आते हैं, उत्तर बिहार के इलाके से, वहां पर राजपूत वोट बैंक पर उनका जब पकड़ है उनकी, और ऐसे में उनको कहीं ना कहीं साध कर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी ये भी कह रही है कि आनंद मोहन खुलकर वो आनंद मोहन का विरोध बीजेपी नहीं कर रही है, बल्कि उनके साथ साथ जो 27 लोग रिहा हुए हैं उनका वो विरोध कर रहे हैं। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि अब नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे कि आखिर इस तरह से कानून में क्यों बदलाव किया गया, जबकि ये कानून खुद नीतीश कुमार लेकर आए थे। जी साकेत, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इट्स अ स्टोरी दैट टाइम्स नाउ कंटिन्यूज टू ट्रैक। वी इनफैक्ट स्पोक टू द डॉटर ऑफ द स्लेन आईएएस ऑफिसर as well. The pleas of the anguished family falling on deaf ears. Watch how RJD and the JDU continue to defend Anand Mohan. उनके रिहाई में सारे नियम कानून कायदे का पालन किया गया है। उनकी रिहाई हुई है, उनके साथ 26 और लोगों की रिहाई हुई है। तो जो लोग भी मीडिया ट्रायल के माध्यम से इस बात को हवा दे रहे हैं, हमें नहीं लगता है कि इसमें इतने हाई तौबा मचाने की जरूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के तहत ही बिहार सरकार ने कानून में बदलाव किए, उसका लाभ उनको मिला, तो इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। Well, in the meanwhile, the BJP has continuously lashed out at the Nitish government. It says that they are now giving this kind of patronage to criminals to cling to power, really leveling the appeasement charge against the Nitish Sarkar. We will play out BJP reactions in just a bit. In the meanwhile, let's quickly shift our focus to another interesting update coming in. But before that, the BJP, remember, has been speaking of how this is an appeasement attempt on part of the Nitish Sarkar. Also raising questions on what is it, what kind of pressure perhaps was the Nitish government facing in making sure that a criminal like Anand Mohan, responsible or rather accused of murdering an IAS officer back in the day, was allowed to get free, was allowed to walk out of jail and in fact get the kind of welcome he did from several of his supporters. In the meanwhile, let's quickly play out a reaction coming in from Anand Mohan. Remember, he's in fact instead hit out at those questioning his release. मेरी रिहाई के लिए सिर्फ ये नोटिफिकेशन नहीं है, आप उसकी गहराई में जाइए। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में इस नियम को विलोपित किया जाता है। कानून में पूरे देश में एक रूपता लाए, हर राज्य में अलग अलग नियम है, दंड एक समान हो, दंड में समानता हो, न्याय में समानता हो, इसका ये तकाजा था। माना जा रहा है नीतीश कुमार का ये पॉलिटिकल मूव के तौर पर देखा जा रहा है कि एक वोट बैंक को खुश करने के लिए और कहीं ना कहीं आरजेडी के दबाव में ये फैसला नीतीश कुमार ने लिया, आपके रिहाई के लिए नोटिफिकेशन अब सरकार ने निकाला। सही कह रहे, नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में ही बिल्किस बानो प्रकरण में गुजरात में भी फैसला लिया गया। एडवांटेज नहीं मिला है, क्योंकि लवली आनंद आपकी पत्नी है, आरजेडी में है, बेटा चेतन आनंद आरजेडी से विधायक है। इसका एडवांटेज यही मिला कि मित्रों की सरकार थी, इसके पहले भी
और 1.5 साल ज्यादा रह गए। सभी कहते रहे आनंद मोहन निर्दोष है। जो भी फैसला आया, फिर भी हम जो है राज्य सरकार और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं। That's the big question. There are family members of Anand Mohan still linked with the RJD. Should this not be looked at as political patronage? Remains unanswered still. With that, we had a quick break. News and updates continue.